Hello students, how is your study going on? Hopefully it is going on well. Today we are here to discuss the equations of motion by graphical method. बच्चों आप सब लोग जानते हैं कि there are three equations of motion. First one is v is equal to u plus at. Second one is s is equal to ut plus half at square, and third one is v square is equal to u square plus 2 times as. So we are going to derive all these three equations of motion by graphical method today. In last video, we discussed about the different types of graphs and how those graphs gives us different variables, or how those graphs helps us to find out different quantities like acceleration, distance traveled, displacement, etc. Now we will be using those graphs so as to derive the equations of motion. So here is the first equation of motion. So बच्चों, here is the first equation of motion. We are going to derive that equation by using graphical method. इसके पहले थोड़ा बहुत नॉलेज जो आपको होना चाहिए वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन का, जिसमें दो से तीन टाइप के ग्राफ हमने पढ़े थे. एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने पढ़ा था, एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमने पढ़ा था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने पढ़ा था. इसके अंदर भी इनके टाइप्स हमने पढ़े थे. ये सब अगर आप देखना चाहते हैं तो लास्ट वाला वीडियो जरूर देखें. आपको इन सारे ग्राफ्स का एक्सप्लेनेशन प्रॉपर तरीके से उस वीडियो में मिल जाएगा. उस वीडियो को देखने के बाद ही आप इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं. तो बच्चों, here is the first equation of motion, that is v is equal to u plus at by graphical method. So here is the graph. ध्यान दीजिए, this is velocity time graph, और इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए. ये ग्राफ है ऑब्जेक्ट के लिए जिसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, उसका इनिशियल वेलोसिटी इज समथिंग एंड इट इज OA. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इज OA, जिसको हमने U से डिनोट किया, आपको दिख रहा होगा. After some time it has accelerated. Okay, u मीटर पर सेकेंड से ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा था और अब वो एक्सेलरेट हुआ t सेकेंड्स के लिए, और फाइनली उसकी वेलोसिटी बन गई bc. That's final velocity and object has become bc. Is that clear to you? तो OA is initial velocity, bc is time, A is the acceleration which is given by slope of this graph, और slope कैलकुलेट करने के लिए height upon base, that is BD upon AD. कुछ इस तरह से हम जाने वाले हैं. और OC is equal to the time which is in second. इतना क्लियर है? तो आगे बढ़े. देखो, let an object is traveling with an initial velocity of u meter per second, and then it is subjected to an acceleration of a meter per second square for t seconds such that its final velocity is v meter per second. कितना? v meter per second. So from the graph, initial velocity is given by OA. Okay, final velocity is given by BC, but BC is equal to BD and DC का sum, that is BD plus DC. Now BC is equal to V and BD. ये वाला सेगमेंट हमें नहीं पता है क्या है, ये थोड़ी देर के बाद हम कैलकुलेट करेंगे. और रहा सवाल DC का, तो DC is equal to OA, आपको दिखाई दे रहा है, और OA is equal to U. Therefore DC is equal to OA is equal to U. हमने यहाँ पर U लिख लिया है. Let this be the equation number 1. अभी हमारा नेक्स्ट वाला टास्क है इस BD की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. ओके, तो ध्यान दीजिएगा, ये ग्राफ देखिए, कौन सा ग्राफ है ये? ADB. ओके, सो फ्रॉम ग्राफ ADB, ये पर्टिकुलर डायग्राम देखिए, इट इज ट्रायंगल. ओके, इट्स ADB. सॉरी, अब देखो इस ग्राफ में AB क्या इंडिकेट कर रहा है? स्लोप. AB क्या है? स्लोप. तो देखो, स्लोप ऑफ AB is equal to
हाइट अपॉन बेस, हाइट अपॉन बेस। स्लोप ऑफ AB क्या इंडिकेट करता है बच्चों? इट इज एक्सेलरेशन। और हाइट कौन है यहां पर जरा देखिए, इट इज BD। और बेस क्या है बच्चों? इट इज AD। ओके, तो AD इज द बेस। अब इसको मैं इधर लिख लूंगा ताकि आप काफी अच्छे से इसको देख सकें। देखो, A इज इक्वल टू BD डिवाइडेड बाय AD। ओके, आगे बढ़ो। सो A is equal to BD divided by, देखो AD is equal to OC, यहां लिख रहा हूं मैं, देखो AD is equal to OC and OC is equal to time, OC is equal to time, therefore मैं यहां पर time लिख ले रहा हूं। therefore BD must be equal to A multiplied by T। ये मिल गया हमें इक्वेशन नंबर 2। अब करना क्या है, देखो इक्वेशन 2 से BD की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करना है, दैट्स ऑल। ओके, सो पुट द वैल्यू of BD from equation 2 in equation 1. Okay, so V is equal to BD plus U, that is V is equal to BD निकला है 80 plus U। अब इसे रीअरेंज कर दीजिए तो V is equal to U plus 80। This is the first equation of motion where V stands for final velocity, U for initial velocity, A for acceleration and D for time. Now the second equation of motion by graphical method. So what is the second equation of motion? It's S is equal to ut plus half at square. So we will derive this equation of motion by graphical method. So please pay your attention here. अब सब जानते हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय एरिया अंडर द ग्राफ। सेकंड इक्वेशन की अगर हम बात करें तो सेकंड इक्वेशन में एक्चुअली हमें डिस्टेंस ट्रैवल्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज गिवन बाय बच्चों ध्यान दीजिए, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज गिवन बाय एरिया अंडर द ग्राफ। ये तो आप जानते ही, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज गिवन बाय एरिया अंडर द ग्राफ। और इस ग्राफ के अंदर के एरिया की अगर हम बात करें तो देखिए, दिस इज वन ऑफ द एरिया, दैट इज एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एंड ये है दूसरा वाला एरिया जो कि इस रेक्टेंगल का एरिया है OADC। ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहां लिख देता हूं मैं OADC और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। अब हमें करना क्या है, ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है, ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है और दोनों एरियाज को प्लस कर देना है, तो टोटल एरिया अंडर द ग्राफ हमें पता चल जाएगा। एडवांस हमें टोटल एरिया अंडर द ग्राफ मिल गया, इसका मतलब है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गया। सो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज ADB। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाय हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। अब बेस क्या है देखिए जरा, इज इट AD एंड हाइट क्या है, इज इट BD? यस, BD इज द हाइट। अब हाफ इनटू AD इज इक्वल टू OC व्हिच इज इक्वल टू T, ये है आपके सामने। और BD का वैल्यू जो है बेटा फर्स्ट इक्वेशन में हमने कैलकुलेट किए थे, याद करो, याद आ रहा है? स्लोप ऑफ द ग्राफ, acceleration is equal to height upon base, acceleration is equal to BD upon T, therefore BD is equal to 80, वही 80 यहां पर हमने पुट किए, तो कुल मिलाकर एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल गया हाफ AD स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC, ओके OADC, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब लेंथ क्या देखिए जरा, OC which represents T and breadth क्या है OA that represents U, therefore it has become UT। अब देखो सेकंड और थर्ड इक्वेशन की वैल्यूज को हमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। सो
finally we have s is equal to ut plus half at square. This is the second equation of motion by graphical method, where s denotes the distance traveled by an object, u for initial velocity, t for time and a for acceleration. बस एक बात याद रखें कि equations of motion are applicable only for the object which is uniformly accelerated. That's it.